So let us start. A consumer buys 80 units of a good at a particular price of 5 rupee per unit. Suppose the price elasticity of demand is -2. At what price will he buy 64 units? So in this question there are need to calculate new price. Means when initial price is 5 rupee per unit, quantity demanded is 80 units, and at what price we buy 64 units. So in this questions there is given initial quantity demanded is equal to 80 units, and new quantity demanded equal to 64 units. Initial price equal to 5 rupee per unit, and new price and price elasticity of demand, price elasticity of demand equal to -2. So in this question there is given initial quantity, new quantity, initial price, and price elasticity of demand. How we can calculate the new price? So we know that price elasticity of demand is equal to percentage quantity demanded upon percentage price. So price elasticity of demand is equal to price elasticity of demand equal to percentage change in quantity demanded. Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Percentage change in price is equal to delta Q upon Q1 into 100 upon delta P upon P1 into 100. We are representing initial quantity, we are representing Q1 by Q1, and new quantity we are representing Q2. Initial price we are representing T1, and new price we are representing T2, and elasticity of demand we are representing ED. So price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Percentage change in quantity demanded is equal to change in quantity demanded upon initial quantity into 100. Percentage change in price is equal to change in price upon initial price into 100. Delta Q
delta Q, it is known as the change in quantity demanded, and Q, it is known as the initial price. Sorry, delta Q, it is known as the change in quantity, and Q1, it is known as the initial quantity, and delta P, it is known as the change in price, and Q1, it is known as the इनिशियल प्राइस. आगे इसमें देखते हैं 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये आपका कैंसिल आउट होगा. इसमें देखिए ये आपका हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन Q1 इंटू P1 अपॉन डेल्टा P, और इसको जो है माइनस साइन से या इसको राइट कर सकते हैं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1. अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे डेल्टा Q की वैल्यू. जैसे इसमें डेल्टा Q इक्वल टू आपका हो जाएगा Q1 माइनस Q2 माइनस Q1. यहाँ देखिए आपको पहले फाइंड करेंगे डेल्टा Q इक्वल टू Q2 माइनस Q1. ये आपका हो जाएगा 64 माइनस 80, ये आपका होगा माइनस 16, और डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1, ये आपका हो जाएगा P2 माइनस 5. डेल्टा Q की प्लेस में हम लोग P2 माइनस 5 करेंगे. अब इससे हम देखते हैं कि जब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है प्राइस इंक्रीज होगा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन वी आर इंक्रीज द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट इन दिस सिचुएशन, क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है हमारा, वो जब प्राइस इंक्रीज करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका डिक्रीज होता है. जब हम उसमें देखिए प्राइस को डिक्रीज करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा इंक्रीज होता है. अब इस क्वेश्चन देखते हैं पहले, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 5 रुपये पर यूनिट, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 80 यूनिट्स था. फिर आगे का हमारा देखते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड 64 यूनिट्स हुआ, इसका मतलब है प्राइस इंक्रीज हो रहा है. तब इसको जो हमारा न्यू प्राइस है उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो फार्मूला है इसमें वैल्यू पुट करके ही उसको कैलकुलेट करेंगे. अब यहाँ पे ऑल वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं. तो इसमें इनिशियल क्वांटिटी आपको हो जाएगी माइनस 16 अपॉन P2 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 80. तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2, ये आपको हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -1 अपॉन P2 माइनस 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 P2 प्लस 10 इज इक्वल टू -1. अब इसमें देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यूज क्या करेंगे, यहाँ पे हम 10 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो आपको हो जाएगा -11, तो बोथ साइड में आपको माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. अब इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे हम इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू पुट करते हैं. अब इसमें देखिए आपको -2 P2 इज इक्वल टू -1 -10. अब इसमें आपको हो जाएगा -2 P2 इक्वल टू -11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका P2 इज इक्वल टू आपका 11.2 होगा. तो P2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5.5. ये आपका आंसर हो जाएगा. न्यू प्राइस इज इक्वल टू 5.5. ये आंसर.
टाइप के क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है, तो पहले उसमें हम देखते हैं इनिशियल प्राइस गिवन है, आपका न्यू प्राइस गिवन है। अगर उसमें इनिशियल क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस और न्यू प्राइस गिवन होगा तो डायरेक्ट हम उसमें जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फार्मूला होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू आपको होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर उसकी हम वैल्यूज पुट करके इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।